Hello, friends. So, here we are seeing a very important things from a very famous book of Rain and Martin, English Grammar and Composition. So, it's a very fabulous book. We are learning different kinds of things. Okay, so let's go ahead now. Last time we studied parts of speech. What are the parts of speech? We studied it very nicely. So you can see here that there are contents here. So last time we saw parts of speech. Then next we are going to see the noun, kinds of noun. So you may have the idea of what are the kinds of noun. Let's see then. So noun, we saw that what is a noun. हम लोग ने देखा कि noun होता क्या है. Noun is a name of a person, place or animal or thing. So let's see this sentence. Asoka was a wise king. So in this sentence, Asoka is a proper noun and king is a common noun. Why Asoka is a proper noun and king is a common noun? Because Asoka, when we talk about Asoka, then he is a particular, we are talking about a particular king. Okay, but when we are talking about king, just king, then it can be any king. So that's why Asoka, when we talk specifically about any king like Asoka, Chandragupta Maurya, Shivaji Maharaj, then they are particular king. Okay, so this is they are proper noun. But when we talk about any king, king in commonly we talk about king, then it's a common noun. So I hope you got it. So here there are some more examples. So you can see it. Sita is a proper noun while girl is a common. Sita is also a girl, but the name of a particular girl is a Sita. So Sita will be a proper noun, but in general we say girl, then it's a common noun. Hari is a boy. Okay, so Hari is proper noun, but boy is a common noun. Kolkata is a proper noun because Kolkata is a particular city, but city is a common noun because there are so many cities. Okay, India is a proper noun. India is a country, and that's why it is a proper noun. But country is a common noun because there are so many countries. There are around 200 countries, I think. So the word girl is a common noun because it is a name of a common to all girls. गर्ल कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि कोई भी लड़की हो सकती है, वो एनी गर्ल. देर आर बिलियंस ऑफ गर्ल्स, crores of girls in this world. So Sita is a proper noun, but Sita is a particular girl. So that's why she is a proper noun. So because it is the name of a particular girl, इसलिए proper noun होगा. That is what being said here. Okay. सो डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या हुआ? अभी हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे थे, बट लेट्स सी द डेफिनेशन. कॉमन नाउन इज अ नेम given in common to every person or thing of the name person thing of the same class or kind. कॉमन नाउन होता क्या है? नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. जैसे देर आर सो मेनी बॉयज इन दिस वर्ल्ड. ओके, माई नेम इज अमन, देर आर सम अदर ओमकार, Laksh. There are so many boys. So boy is a common noun in general sense, but particular name of a boy is a proper noun. So proper noun is the name of a particular person or place. Proper noun क्या होता है? किसी particular place person का नाम particular noun हो जाता है. और common noun मतलब in general sense. So let's see ahead. प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ना, वो कैपिटल लेटर से ही बिगिन करते हैं, लिखते हैं उसको. ओके, देन प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स एज ही वॉज द लक मैन, द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज. कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी हम लोग एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. Let's see ahead. And now we are going to see collective noun.
कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल एज. कलेक्टिव नाउन मतलब कि ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, उनको हम कुछ बोलते हैं. जैसे लेट्स सी द एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बेटर वे में समझ जाएगा. क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड. लाइक क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उनको जो 11 बॉयज़ होते हैं उनको टीम बोलते हैं हम. ओके. और ढेर सारी भीड़ जमा हुई है तो उनको हम लोग क्राउड बोलते हैं. ओके. हर्ड, फ्लॉक. ओके. फ्लॉक. देन आर्मी, ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं तो आर्मी बोलते हैं. फ्लीट मतलब जहाज़ों का ढेर सारा झुंड रहता है, उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं. किसी मतलब ढेर सारे एक मकान के नीचे ढेर सारे लोग रहते हैं तो उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं. किसी कंट्री में ढेर सारे लोग रहते हैं उसको नेशन बोलते हैं. पार्लियामेंट, कमेटी, ना दीज आर ग्रुप्स. ओके. तो ये सब अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी इट. फ्लीट किसके लिए यूज़ होता है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स. कुछ जहाज ढेर सारे ऐसे तट के सामने, मतलब नदी के या फिर घाट के तट के सामने होते हैं, तो तट पर होते हैं, तो उनको हम कलेक्शन ऑफ वेसल और शिप ऐसा बोल सकते हैं. और फिर एन आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं, उनको हम लोग एन आर्मी बोलते हैं. क्राउड मतलब ढेर सारे लोग होते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. देन पुलिस, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड. ढेर सारे लोग होते हैं उनको क्राउड बोलते हैं. ओके. देन द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑल. द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. ओके. ज्यूरी मतलब जो ढेर सारे जजेस बैठे रहते हैं, 4, 5, 10 ऐसे जजेस बैठे रहते हैं जब कोई बड़ा डिसीजन लेना रहता है तो. अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग. हर्ड मतलब कैटल्स का झुंड वो रहता है, वो पास होता है, तो अ हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं ऐसे हम उसको. सो दीज आर कॉमन कलेक्टिव नाउन. आई होप यू गॉट इट. कोई भी पर्सन और थिंग जब टुगेदर होते हैं ना तो उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम. नाउ वी विल सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs as. So abstract noun is actually talks about the quality of a person. Okay. It's a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs as. Let's see the examples. Quality में क्या होता है? Goodness, kindness, whiteness, all these things. Then darkness, hardness, brightness, honesty, wisdom, bravery. Then action में laughter, theft, movement, judgment, hatred. State में childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, sickness, death, poverty हो सकता है. Then the names of arts and science, example grammar, music, chemistry, these are also abstract noun. Okay. Then abstract nouns are formed from adjective. Kindness is an objective. Okay. Sorry, adjective. Kindness is a adjective. You should be kind. Kind से kindness बन गया. ness लग गया ना, मतलब वो क्या हो गया? noun बन गया. ness, tion, ous, ये सब लगा करके जो है ना कोई भी एडजेक्टिव वर्ब को नाउन बना दिया जाता है. तो काइंड मतलब दयालु, इट्स एडजेक्टिव. ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. बट काइंडनेस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी. इट बिकम्स अ नाउन. ओके. काइंडनेस यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है. काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट. सो यू कैन सी ऑनेस्ट इज़ अ क्वालिटी, बट ऑनेस्टी हो गया मतलब ये नाउन हो गया. फ्रॉम वर्ब्स का भी बनता है. ओबीडियंट वर्ड होता है. ओबीडियंट से ओबीडियंस बन गया है. ओबे से ओबीडियंस बन गया. फिर ग्रो से ग्रोथ बन गया. तो दीज आर नाउन्स. ओके. वर्ब से बन गया. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. फिर कॉमन नाउन, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड से बना है. स्लेवरी फ्रॉम स्लेव से बना है. फिर दो अलग तरह के और नाउन होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स. वो क्या होते हैं हम लोग वो देखते हैं. काउंटेबल नाउन्स विच वी कैन काउंट. बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट. हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते. जैसे मिल्क को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हो. मेरे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है. नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बट उसको हम लोग अलग मेज़रमेंट में उसको हम लोग करते हैं, मेज़र करते हैं.
शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को कर सकते हो आप, कितनी ऑनेस्टी है मेरे अंदर, आपके अंदर कितनी ऑनेस्टी है काउंट कर सकते हैं मेरे। आप बोलोगे मेरे मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, कितने ऑनेस्ट हो? 10% ऑनेस्ट हो, 20%, 100%, कितने हो आप? गोल्ड कितना ज़्यादा प्योर है कैसे बता सकते हो आप? गोल्ड की प्योरिटी भी मेजर नहीं कर पाते हो आप, कर सकते हो आप। सो द मेनली डिनोट substances and abstract things, okay, these are abstract things. तो हम लोग है ना, जो काउंटेबल नाउंस होते हैं ना, उनको उनका हम प्लूरल हमको मिल सकता है। जैसे बुक का बुक्स हो गया, बट मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, मिल्क का मिल्क ही रहेगा। सो दिस इज, सो यहाँ पे हम लोग को पूरा जो होता है टाइप्स ऑफ नाउन ख़त्म होता है। और यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर, you can see some questions here, you can solve this, you can take screenshot of these questions and you can solve this all. Then there are also some ahead also, you can classify the different types of nouns and you can practice these things. So in next lecture we will study the noun gender. On the basis of gender, what are the kinds of noun, okay? So we will meet in next lecture. Till that time you can solve this, you can solve these all questions. I hope you taken a screenshot. I had paused it for some moment, so you can study and you can learn better. Thank you so much.